کسی بادشاہ کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو طبیبوں نے کہا اگر کسی نوجوان لڑکے کو خرید کر بادشاہ کے نام پر قتل کر دیا جائے تو بادشاہ سلامت کی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکے کے والدین کو ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے والدین کو مال و دولت سے نواز کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے نوجوان لڑکے کی قربانی دیں گے۔ اب تو قاضیوں نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ سلامت کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے اگر کسی ایک نوجوان کا خون بہا دیا جائے تو جائز ہے۔ اب اس نوجوان لڑکے کو پھٹے پر چڑھا دیا گیا۔ جلاد نے جب قتل کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے آسمان کی طرف منہ کیا اور مسکرانے لگ گیا۔ آسمان کی طرف منہ کرتے ہی مسکرانے لگ گیا۔ ہے بادشاہ نے جب اس نوجوان لڑکے کی مسکراہٹ دیکھی تو دریافت کیا کہ تم ایسے وقت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا نوجوان لڑکے ایسے وقت میں تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ تو بتاؤ۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا بادشاہ اولاد کا مان اس کے والدین ہیں، اولاد کا سہارا اس کے والدین ہیں، اولاد کو تسلی دینے والے اس کے والدین ہیں، اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کر کے انصاف بادشاہ سے لیا جاتا ہے۔ ہے بادشاہ سلامت میں کیا کروں؟ ماں باپ نے دولت کی لالچ میں آ کر، ماں باپ نے دولت کی حرص میں آ کر مجھے بیچ دیا۔ قاضی شہر نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ ایک تو ہی تو میری سننے والا تھا، ایک تو ہی تو میری فریاد سننے والا تھا، میری جان بچانے والا تھا، تو اپنے نام پر مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ میرے لیے نہ میرے والدین رہے، نہ قاضی صاحب رہے، اور نہ ہی بادشاہ رہے۔ بادشاہ ایسے وقت میں اللہ کے سوا میرے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے سوا میری اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اس وقت میرے کریم رب کے سوا میری کوئی دھانے سننے والا نہیں، میرے کوئی دکھڑے سننے والا نہیں ہے، میرے کوئی درد سننے والا نہیں ہے۔ بادشاہ میں تو اب بس اللہ سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ اے بادشاہ سلامت نے جب اس نوجوان لڑکے کی تڑپتی فریاد سنی تو بادشاہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ بادشاہ رو کر کہنے لگا بیٹے میں مروں یا زندہ رہوں، اے میرے نزدیک اس بے گناہ قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، اس لڑکے کا سر چوما، اسے مال و دولت سے نوازا، اسے معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا۔ اب جوانو خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر تندرست ہو گیا۔ بیماریاں جاتی رہیں، دکھ جاتے رہے، تکلیفیں جاتی رہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بادشاہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس حکایت میں آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کو یاد کرے تو اللہ برے وقت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے لوگو تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور بے شک میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، بے شک میں ہی تمہارے دکھوں کو سننے والا ہوں، تمہاری فریادوں کو سننے والا ہوں۔ جوانو آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں سکون ہی سکون ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں آرام ہی آرام، جہاں چین ہی چین، جہاں مقام ہی مقام۔ عرش والا تو آوازیں دے رہا ہے، وہ میرے حبیب کے امتی ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر سجدے میں جھکا کر تو دیکھ، ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ بخشش کی انتہا نہ کر دوں،
मुझे रब्बुल आलमीन भी ना कहता है। जवानों सुनो, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं, चाहे जान क्यों ना चली जाए, करीम रब की नाफरमानी नहीं करते, हर वक्त उसकी फर्मा बरदारी में लगे रहते हैं, हर वक्त उसके हुक्म के मुंतजर रहते हैं। मुझे एक और वाक़या याद आ गया। वो एक दुकानदार था, उसकी दुकान पर एक मुलाजिम था, नौजवान लड़का था, बहुत ही खूबसूरत था, हसीन व जमील था। अल्लाह ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाज रखा। ये मुलाजिम था, मालिक की दुकान पे काम किया करता था, मुलाजमत किया करता था। एक दिन एक खातून आई शॉपिंग के लिए, कुछ माल खरीदने के लिए इस दुकान पर आई। इस खातून ने, इस औरत ने जैसे ही उस नौजवान को देखा, खूबसूरत लड़के को देखा, तो इसका दिल बेईमान हो गया। इसने कहा कुछ का कुछ हो जाए, दिल में इसने तहैया किया, कुछ का कुछ हो जाए, मैंने तो इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करानी ही करानी। अब इस खातून ने क्या किया, काफ़ी सारा सामान ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद इस एक गठड़ी बना डाली। गठड़ी बनाने के बाद इस खातून ने दुकान के मालिक को कहा, अगर आप अपने इस ग़ुलाम को मेरे साथ भेज दें, इस नौकर को, इस मुलाजिम को मेरे साथ भेज दें, ये सामान मेरे घर में रखवा के। मालिक की दुकान ने अपने इस मुलाजिम को खातून के साथ भेज दिया कि सामान अपने कंधे पे उठाओ, जाके खातून के घर छोड़ के आओ ये सामान। अब इस खूबसूरत हुस्न के शहजादे ने ये गठड़ी उठाई, अपने कंधे पे रखी, जा रहा है। ये खातून नौजवान के हुस्न को तकती चली जा रही। वो नौजवान सिर्फ नौजवान ही नहीं था, अल्लाह का नेक बंदा भी था, अल्लाह का महबूब भी था। है ये नौजवान जैसे ही इस खातून के घर पहुंचा, जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तो इस खातून ने दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। नौजवान ने सामान रखा, रखने के बाद कहा मैं जा रहा हूँ। खातून ने कहा तुम जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। उस औरत ने कहा तुम जो कुछ मुझसे मांगना चाहते हो, पैसा लेना हो, दौलत लेनी हो, ये लेना हो, वो लेना हो, ले लो, लेकिन मैंने आपसे आज अपनी ख्वाहिश पूरी करानी। मैंने आज अपनी ख्वाहिश पूरी करानी। आज तो मैंने शैतान को राज़ी करना ही करना है। वो नौजवान सिर्फ नौजवान ही नहीं था, अल्लाह का नेक बंदा भी था। वो सिर्फ हुस्न का मालिक नहीं था, बल्कि वो हसीनों का हसीन भी था, हुस्न देने वाले का महबूब भी था। उस नौजवान ने कहा मई अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से बच जाओ, शैतान को राज़ी ना करो, शैतान तुम्हें भी तबाह कर देगा, शैतान मुझे भी तबाह कर देगा, इस शैतान को राज़ी ना करो। जब ये खातून बाज ना आई तो उस नौजवान खूबसूरत लड़के ने एक तरकीब सूझी, अगर मैं ये अमल करूं तो मुमकिन है कि मैं बच जाऊं इस गुनाह से। उसने तरकीब सोची, एकदम उसने कहा अच्छा फिर मुझे वाशरूम आई है। जब इस खातून ने ज़्यादा तंग किया, हद से पार हो गई, तो इस खूबसूरत लड़के ने कहा मुझे वाशरूम आया है, मैंने वाशरूम जाना है, वापसी पर तुम जो कुछ करना कर लेना। ये खूबसूरत लड़का, ये खूबसूरत नौजवान वाशरूम के अंदर गया। इसने क्या किया, सारी गंदगी उठाई, अपने चेहरे पर मल, सारी गंदगी उठाई, अपने जिस्म पर मल ली। वाशरूम से बाहर आया, इस खातून ने नौजवान को देखा, कहा ओहो ये तो कमला निकला है, ये तो पागल निकला है। उस खातून ने नौकरानियों को कहा इसको धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दो, जल्दी करो, बदबू फैलने लगी। ये खूबसूरत नौजवान बाहर की तरफ गया, घर की तरफ जा ही रहा था, रास्ते में अपने नफ्स को कह रहा था, और नफ्स तू परेशान ना हो, और जिस्म गंदा हो गया है तो क्या हुआ, और तन मैला हो गया है तो क्या हुआ, मन तो मैला नहीं हुआ। जिस्म गंदा हो गया है तो क्या हुआ, और दिल तो गंदा नहीं हुआ। अपने दिल के अंदर जिस करीम रब की मैंने मोहब्बत बिठाई हुई है, जिसका इश्क बिठाया हुआ है, जिसका प्यार बिठाया हुआ है, वो दिल तो मैला नहीं होने दिया, वो दिल तो गंदा नहीं होने दिया। अभी ये एक लोटा पानी का भरूंगा, जिस्म पाक हो जाएगा। अगर दिल मैला हो जाता है, अगर दिल नापाक हो जाता, गुनाहों से भर जाता, तो क़यामत तक मैं इस दिल को पाक व साफ
ना रख पाता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा तन तो गंदा हो गया है, मन तो गंदा नहीं हो। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं, वो किसी भी तरह मालिक की नाफरमानी नहीं करते। एक अल्लाह वाले ने अपने मुरीदों से कहा कि मैं फलां शहर जा रहा हूँ और झूठों के महल्ले में रहा करूँगा। मुरीदों, मैं फलां शहर जा रहा हूँ, झूठों के महल्ले में रहा करूँगा। अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो झूठों के महल्ले में आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। वो अल्लाह वाला नेक मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली उस शहर में चला गया, झूठों के महल्ले में रहने लगा। कुछ दिन बाद इस अल्लाह वाले पीर के चंद मुरीद पीर को मिलने गए। शहर में जाकर लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि इस शहर में झूठों का महल्ला कौन सा है, झूठों का महल्ला कौन सा है। जब ये कहते मियाँ और शहर वालों यहाँ एक झूठों का महल्ला है, वो कौन सा है, तो लोग हैरानी के आलम में गुमसुम होकर जवाब देते हो तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं, इस शहर में तो कोई झूठों का महल्ला नहीं है और ये भी नहीं हो सकता कि सारे झूठे जमा होकर एक ही महल्ले में रह रहे हों। ये जहाँ भी जाते पूछते मियाँ यहाँ एक झूठों का महल्ला है, हमारा पीर हमें कह के गया था कि फलां शहर में एक झूठों का महल्ला है, मैं उस महल्ले में रहा करूँगा, अगर तुम्हें मुझे मिलना हो तो झूठों के महल्ले में आ जाना। ये जहाँ भी जाते पूछते मियाँ झूठों का महल्ला कहाँ है, तो आगे लोग कहते हो तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिरकार ये मुरीदीन मोता के दिन थक कर बेउम्मीद होकर शहर के एक किनारे कब्रिस्तान की तरफ जा निकले। अब ये मुरीद जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ जा निकले तो देखकर हैरान रह गए कि पीर साहब उसी कब्रिस्तान में बैठे हुए। पीर साहब से मुलाकात के बाद पूछा गया, हजरत लोगों ने हमें खूब पागल बनाया, खूब पागल कहा, शहर के किसी कोने में झूठों का महल्ला ना बताया, आप कहते थे कि मैं झूठों के महल्ले में रहा करूँगा। हम इस शहर में आए, पूछते पूछते थक गए कि झूठों का महल्ला कहाँ है, झूठों का महल्ला तो हमें नहीं मिला और आप कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। है ये सुनकर उस अल्लाह वाले ने फरमाया, कहा बेटे देखो ये कब्रिस्तान ही तो झूठों का महल्ला है, ये कब्रिस्तान झूठों का ही महल्ला है। इस कब्रिस्तान में रहने वाले सब लोग झूठ ही तो कहते थे कि कोई कहता था ये गांव मेरा है, कोई कहता था ये शहर मेरा है, कोई कहता था ये ज़मीन मेरी है, कोई कहता था ये मकान मेरा है, कोई कहता था ये कोठी मेरी है, कोई कहता था ये बंगला मेरा है, कोई कहता था ये मकान मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये बाग मेरे हैं, ये भी मेरा वो भी मेरा, ये ऊँट भी मेरा है, ये बकरी भी मेरी है, ये गाय भी मेरी है। मुरीदो मुझे बताओ कि आज इनके पास क्या है, मुझे बताया जाए। मेरा 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 करने वाले, मेरा 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 कहने वाले लोगों के पास आज है ही क्या। खूब देखकर मुझे बताओ ये कोई चीज़ अपने यहाँ लेके आए। और यहाँ तक कि इनका जो कफन था, कफन, उस कफन को भी मिट्टी खा गई, नाम को भी मिट्टी खा गई, मोटे ताजे बदन को भी मिट्टी खा गई। वो भी मेरा था, ये भी मेरा था, वो मुरब्बा भी मेरा, ये शहर भी मेरा, ये गांव भी मेरा, ये जायदाद भी मेरी, मेरी मेरी तो जहाँ रह गई। मुरीदो खूब देखकर मुझे बताओ क्या ये लोग कुछ लेकर अपने साथ आए? अगर कुछ नहीं लेकर आए तो फिर मुझे बताया जाए इनके दावे झूठे निकले या ना निकले, और ये सारे झूठे निकले या ना निकले। अगर इनके दावे झूठे निकले हैं तो फिर ये झूठों का महल्ला हुआ या ना हो। इस जालिम बादशाह ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि मेरे लिए कौन सी इबादत अच्छी है। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ जालिम बादशाह, तेरे लिए दोपहर का सोना सबसे बड़ी इबादत है, दोपहर का सोना तेरे लिए बेहतरीन इबादत है, इसलिए कि कुछ देर तक लोग तेरे जुल्म से महफूज रहेंगे। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक जालिम को मैंने दोपहर के
के वक्त सोते देखा तो कहा इसका सोया रहना ही बेहतर है, इसका सोया रहना जागने से कहीं ज्यादा बेहतर है। जिस जालिम की नींद इसकी बेदारी से अच्छी हो, जिस जालिम की नींद उसकी बेदारी से बेहतर हो, और उसका मरना उसके जीने से बेहतर हो। अगर हुक्मरान जालिम हो तो उन्हें ये याद रखना चाहिए, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे ये याद रखना चाहिए कि उनसे पहले जालिमों का क्या अंजाम हुआ। जालिम की लगाम अगरचा दराज है, मगर सुनो जब खींची जाती है तो फिर जालिम को पनाह देने वाला कोई नहीं हो।